Good morning, fifth class. So today we are going to start a new chapter in your EVS book, and I have asked you to read this chapter yesterday. Hope you all have read the chapter. And so we are doing a water unit. We read about how to fetch water and what were the various ways which ancient people used to fetch water and why water is so important for us. So today we are going to study about some plants and animals which live in water, which grows in water. So let's start with the chapter. Animals and plants living in water are called aquatic animals. So those animals and those plants which live in water, जो plants और animals water के अंदर रहते हैं वहाँ grow करते हैं, उनको aquatic animals बोलते हैं. Because aqua पानी का एक दूसरा नाम होता है aqua, तो उनको aquatic animals बोलते हैं. Water, another name for water is aqua. And aquatic plants respectively. Let us study about them. So, aquatic plants are of three types. What are those plants? जो पानी में grow होते हैं. They can be in the water, they can be in the pond, river, or they can be in the sea. So, aquatic plants are of three types: free floating, submerged plants, and fixed plants. These are the three types of plants which grow in water. Now free floating plants. What are free floating plants? Free floating aquatic plants have roots. Float मतलब तैरना, पानी के ऊपर तैरना, पानी की जो ऊपर वाली लेयर होती है उस पे float करना, तैरना. So these floating plants have roots which hang in water and help the plant to float and balance in the water. इनके जो roots होती हैं वो ऐसे hang कर रही होती है और ये ऊपर पानी में swim कर रहे होते हैं. These plants are light in weight. अब वाई दे आर एबल टू स्विम? बिकॉज दे आर लाइट इन वेट एंड आर स्पॉन्जी. वो स्पॉन्जी होते हैं क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं. देयर लीव स्टॉक्स आर फिल्ड विद वाटर एंड दस आर स्पॉन्जी. उनकी जो लीव स्टॉक्स होती हैं वो वाटर फिल कर लेती हैं और इसलिए वो स्पॉन्जी होती हैं बहुत ज़्यादा. दिस मेक्स देम ईजी टू फ्लोट इन वाटर फ्रीली. और ये उनको हेल्प करता है पानी में ईजिली फ्लो करने के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स आर hyacinth, duckweed, water lettuce, etc. So these are the three plants which are free floating plants. They float in water. Now submerged aquatic plants. Now what are submerged aquatic plants? The submerged aquatic plants have feeble roots. These roots are fixed to the soil at the bottom of the water. अब इनकी roots जो थी वो तो float कर रही थी पानी के अंदर, right? वो ऐसे लटकी हुई थी, ये ऊपर तैर रहे थे, roots लटकी हुई थी. इसके अंदर जो इनकी roots होती हैं वो soil में जाके fix हो जाती हैं. जो water के नीचे soil होती है ना, वहाँ पे इनकी roots fix होती हैं. It bears stems and leaves which float in water. और जो इनकी stems और leaves है वो पानी में फ्लोट करती हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस. और अपनी बॉडी सरफेस की वजह से वहां से ये ब्रीथ करते हैं. द स्टेम ऑफ द प्लांट इज स्पॉन्जी एंड लीव्स आर थिन. इसकी भी स्टेम्स जो हैं वो स्पॉन्जी होती हैं क्योंकि वो पानी सोक करती हैं, एंड लीव्स जो हैं वो बहुत थिन होती हैं. दे आर रिबन लाइक विद लार्ज एयर स्पेसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रीलिया, टेप ग्रास, पॉन्ड वीड एंड Neria-like plants. So these are the plants which are submerged aquatic plants. They have fixed roots. वो soil के अंदर fix होती हैं और बाकी body इनकी float कर रही होती है. Next is fixed aquatic plants. अब ये है fixed aquatic plants. एक थे हमारे floating, जिनकी रूट्स वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर नहीं थी, फ्लोट कर रही थी. इनकी रूट्स क्या थी? वाटर के अंदर फिक्स थी, लेकिन बाकी चीज़ जो थी वो फ्लोट कर रही थी. नाउ ये है फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स जो फिक्स रहते हैं. दीज प्लांट्स हैव रूट्स विच आर फिक्स टू द सॉइल. दे हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम्स. दे बेयर फ्लोटिंग लीव्स. इनकी क्या होती है? इनकी रूट्स भी फिक्स होती हैं एंड दे हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम्स. बड़ी हॉलो स्टेम्स होती हैं इसकी, और इनकी जो लीव्स हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं. दीज लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. द लीव्स हैज पोर्स ऑन देम. उनकी लीव्स पे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट्स जो है वो ब्रीथ कर सकता है. दीज लीव्स आर डार्क एंड लार्ज इन कलर. द एग्जाम्पल्स ऑफ देम आर चेस्टनट. चेस्टनट मतलब सिंघाड़ा जो हम खाते हैं ना, अभी मार्केट में आ रहा है सिंघाड़ा, ग्रीन कलर का सिंघाड़ा, उसका आटा भी यूज होता है. तो सिंघाड़ा, that is chestnut, water lily and lotus. These are the three examples of fixed aquatic plants. Lotus आपने देखा होगा, इतनी बड़ी बड़ी leaves होती है लोटस की, और वो लोटस ऐसे तैर रहा होता है ऊपर पानी में, राइट? ऐसे ही water lily जो है, water lily भी it's one of the fixed aquatic plants. Some plants grow along the seashores where sea water dips them half in sea water.
मैनग्रोव्स आर सच प्लांट्स. नाउ दीज आर मैनग्रोव्स. इसमें क्या होता है, ये सी शोर्स के पास होते हैं, समुद्र के किनारे पे होते हैं. ये समुद्र के किनारे पे रहते हैं. आधा हिस्सा इनका पानी के ऊपर, पानी के अंदर होता है, और बाकी इनका हिस्सा जो है वो बाहर निकला हुआ होता है. दे बेयर सपोर्टिंग रूट्स एंड स्पेशल रेस्पिरेटरी रूट्स. दीज रूट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ वाटर एंड हेल्प द प्लांट इन ब्रीदिंग. इसकी आधी रूट्स बाहर निकली हुई है, जस्ट लुक एट इट. हाफ रूट्स आर आउटसाइड द वाटर एंड हाफ आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, और बाहर से यहाँ से ये ब्रीथ करते हैं. दीज आर mangroves. Now next is aquatic animals. Like aquatic plants, there are aquatic animals who lives in water and we all know them. कौन कौन से हैं? Fish हो गए, turtles हो गए, prawns हो गए, crabs हो गए. These are aquatic animals. They live in water. So animals living in water can be divided into 5 division. अब हम इनको 5 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. एनिमल्स विद शेल्स. अब कुछ एनिमल्स जो है वो शेल्स के साथ होते हैं. लाइक टर्टल. टर्टल के ऊपर एक हार्ड शेल होती है, बहुत हार्ड, एक मतलब पत्थर जैसा उसका शेल होता है, राइट? वो उसको हेल्प करता है. तो दे लिव इन वाटर एंड हैव हार्ड क्रस्ट लाइक शेल ऑन देयर बॉडीज. दे हैव लिम्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग. उनके पास लिम्स होते हैं या हाथ जिनसे वो स्विम करते हैं. Turtles, crabs, lobsters and shrimps are the example of animals with shells. Next are fish. We all know fish. Fish are of different types. They have scales on their bodies and have fins to fin. उनकी बॉडी पे scales होते हैं और fins होते हैं. Fins की वजह से वो swim करती हैं. They breathe through their gills. वो अपनी gills के through जो है वो breathe करती है. वो सांस कहाँ से लेती है? अपनी gill से. Their body is streamlined that enable them to move easily in water. Their body is streamlined that enable them to move easily in water. तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, इट्स इन शेप्स होते, वो उनको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है और अपनी फिन्स की वजह से वो स्विम कर पाते हैं. नेक्स्ट आर एक्वेटिक मैमल्स. एंड व्हाई दे आर सेग्रीगेटेड. फिश, इनको भी, ये भी फिश होती है लेकिन इनको अलग से हम मैमल्स बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज दे डोंट गिव एग्स लाइक अदर फिशेस. दे गिव बर्थ टू यंग वंस. यंग वंस को बर्थ देते हैं वो सीधा, उनके अंडे नहीं होते हैं, वो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं. दीज आर वेल्स, डॉल्फिन्स. दे लिव इन वाटर. They have strong and rigid fins. बहुत strong और rigid fins होते हैं इनके. They are very hard, which help them in swimming. And they have lungs to breathe. इनके पास जो है वो lungs होती है breathe करने के लिए. Fish के पास किससे breathe करती है? वो अपने gills के through breathe करती है, right? तो ये कैसे breathe करती है? इनके पास lungs होते हैं because they are mammals and they give birth to young ones. Next are aquatic birds. Now aquatic birds are those birds which live in water. Water के बाहर भी रह सकती हैं लेकिन वो पानी के अंदर भी रहती हैं. Birds like heron, swan and ducks have no pointed and narrow beaks. इनकी beaks जो है normal birds की तरह pointed नहीं होती है बल्कि नैरो नहीं होती है. इट्स ब्रॉड. दे हैव ब्रॉड beak. दे हैव webbed feet. उनके feet जो है webbed होते हैं, ऐसे चौड़े से होते हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू swim. Some animals can live both on land and in water. These animals are called amphibians like frogs, crocodile and toads. अब ये वाले जो, ये ducks हो गई, swans हो गई, herons हो गए, ये क्या करते हैं? ये पानी के अंदर भी रहते हैं और ये पानी में swim भी कर सकते हैं और ये walk भी कर सकते हैं. Similarly, frogs, crocodile and toads, they are also, ये water के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं. So this was all about aquatic plants and animals. Now we try the question answer and I'll be sending you the same.